Important. Temperature, oxygen availability, pH, and the water availability. Depending upon the temperatures, we can categorize the microorganisms into different phases. Here in this graph, if you can see that in this graph, I have uh, I have narrated some classes of the microorganisms on the basis of the temperature. For example, if starting from here, this one, psychrophiles, psychotrophs, mesophiles, thermophiles and hyperthermophiles. ये कर्व है, इस ग्राफ को रीड कैसे करना है, सिर्फ इतना सा इसको देखते हैं. On the x axis, this is the temperature in the degree centigrade, and on the y axis, this is the growth rate. अगर आप यहाँ पे साइक्रोफाइल्स को देखें तो साइक्रोफाइल्स की ग्रोथ हमारे पास आना शुरू होती है अप्रोक्सीमेटली को -5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके अराउंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक. ओके, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है. यहाँ पे कैन यू सी दैट दिस वन मैक्सिमम, यहाँ पे कर्व मैक्सिमम है हियर. तो मैक्सिमम ग्रोथ जो है ऑप्टिमम मैक्सिमम ग्रोथ हियर इन दिस कंडीशन दैट विल बी टर्म्ड एज ऑप्टिमम ग्रोथ. So in the case of psychrophiles, the optimum growth there is around 10 degrees centigrade, but they can grow from -5 degrees centigrade to 18 degrees centigrade, or in round figure you can say that around 20 degrees centigrade. So this is the range, but the optimum growth for the psychrophile that is around 10 degrees centigrade. Same is the case with the psychotrophs. Psychotroph की range देखें, optimum growth देखें. इसी तरह mesophiles. Mesophiles वो bacteria, mesophilic bacteria are those bacteria or the microorganisms that have ability to grow on the normal temperature, for example around 37 degrees centigrade. तो यहाँ पे अगर mesophile की maximum growth देखें तो this is around 37 degrees centigrade here, mesophile. अगर इसी temperature ranges को अगर एक different तरीके से देखें, यहाँ पे इस graph के अंदर there are some psychrophiles which have ability to grow from -15 to 15 degrees centigrade. Cytotrophs, their optimum temperature is between 20 to 30 degrees centigrade, but they grow well at refrigeration temperature, and refrigeration temperature is around 4 degrees centigrade, and but the cooling temperature you can say that. इसके अलावा जो हमारे पास mesophiles हैं, इनका जो optimum temperature है, this is between 25 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड. ये 25 से 45 तक ग्रो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ देते हैं अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड. कॉटन. Thermophiles they grow from 45 to 70 degree centigrade, and hyperthermophiles they grow from 70 above. इस 70 अब इसकी hyperthermophile की हमारे पास एग्जांपल है Thermus aquaticus. Are you familiar with this? क्या करता है ये? इसके अलावा क्या करता है? Thermus aquaticus. Yes. Was that? Is this time to come in the class? It's 9:50. I know that you are late. I know. आज हम चेयर पकड़ो, इसको सीधा करो, यहाँ बैठो करने आते हैं, मेरे सामने में. ऐसे घुमा. Good. नहीं, इतना आगे बैठो तो ये नजर नहीं आएगा. Good. नेक्स्ट आयो. बहुत दूर से आया ना. बहुत खराब हो गया है. Okay, Thermus aquaticus. This is the organism that is hyperthermophile and that can grow above 70 degrees centigrade, and the best use of hyperthermophile Thermus aquaticus is that आपने टैग polymerase का नाम सुना होगा. ये क्या होता है? क्या करता है? No, polymerase. आपने polymerase ये पीसीआर में यूज करते हैं. Yes, very good sir. Polymerase 3, DNA polymerase 3, that is an enzyme that is involved in the DNA replication in vivo. जब हम आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी? नहीं पढ़ी, अब पढ़ेंगे. लेकिन आप पहले इसको काफी सारा पोर्शन मॉलिक्यूलर का पढ़ के आए होंगे किसी जमाने में. पुराने वक्तों की बात है. तो DNA polymerase 3, that is an enzyme that is used in the replication. ये replication करता होता था, याद है? तो अगर हमें in vitro replication करवानी होती है, यानी कि PCR में polymerase chain reaction के लिए we need the enzyme. कौन सा enzyme? DNA polymerase. ये हमें चाहिए. अब मसला ये है कि during the PCR we provide the high temperature up to 94 degree centigrade या 95 degree centigrade तक टेम्परेचर देते हैं. तो इस टेम्परेचर पे ह्यूमन एंजाइम तो काम नहीं कर सकेगा ना. इसके लिए we have to isolate the enzyme from the organism that is hyperthermophile, and that organism is the Thermus aquaticus. So that's why this enzyme is termed as Taq polymerase, Thermus aquaticus, Taq polymerase.
तो ये बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है. वी आर यूजिंग दिस एंजाइम फॉर द इन विट्रो एप्लीकेशंस इन द पीसीआर, और पीसीआर में हम इस एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द एप्लीकेशन पर्पसेस एंड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ एनी डीएनए स्ट्रैंड. गॉट इट? So this is the hyperthermophilic organism. Which one? Thermus aquaticus. इसका uses क्या है? We are obtaining the Taq polymerase enzyme from it, and we are using the Taq polymerase and PCR for the DNA amplification. अच्छा. Hyperthermophiles जो हैं इनको isolate करने के लिए we have to go for the hot springs जो कि from the core of earth जो hot springs जो हैं आ रहे हैं वहाँ से हम ले सकते हैं. And this Thermus aquaticus that is actually Archaebacteria. हमने पढ़ा था ना domain. This is Archaebacteria. This is not a eubacteria. This is Archaebacteria. Here I have written a question. सर ये आपने डीएनए पॉलीमरेज 3 लिखा है या 2 लिखा है? डीएनए पॉलीमरेज ये मैंने 3 लिखा है, ये 3 है, 3. ओके सर. Okay, here I have written a question. Question is that why can some prokaryotes withstand a very high temperature but most cannot? यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ प्रोकैरियोट्स हैं वो तो 70 और 70 अबव पे भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो तो बड़ा यहाँ पे 20 पे, कोई -5 पे, कोई 30 पे ग्रो कर रहा है. Why do you think? Why that is happening? जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे हैं उनके पास ऐसी क्या चीज है कि they can grow on a high temperature? In which form? In which form? Specify it. In which form? Specify it. Which protein? Are you familiar? Huh? No. Are you familiar with the protein that is heat shock protein, HSP? Yeah, the prokaryotes that have ability to grow at high temperature, they have a protein that is named as heat shock protein, and that is HSP. यहाँ पे लिखा हुआ है this thermostability appears to be due to protein structure. This one here I have written. This thermostability appears to be due to protein structure. इसी टेबल में सबसे ऊपर लिखा हुआ है. Protein structure की वजह से और heat shock proteins होने की वजह से they are able to be at a temperature above 70 degrees centigrade. So that's why that protein make them feasible to grow at the maximum temperature and to adopt themselves according to the environment. This was the temperature requirement, and you know that now you are familiar with that. According to the temperature requirement, you can categorize the microorganisms in 5 classes: psychrophiles, cyclotrophs, mesophile, thermophile, and hyperthermophile. 5 classes. Coming next, what is the role of temperature with respect to the food preservation? ये बड़ी इसमें कॉमन बातें आएंगी, आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन की बातें आएंगी फूड प्रिजर्वेशन के लिए. फॉर एग्जांपल the foods which are having the normal microbial flora. Example है milk. Milk is having normal microbial flora. मिल्क का जो प्रिजर्वेशन टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मिल्क को नहीं रखेंगे, you have placed the milk on the room temperature, it means that the microorganisms that are present in the milk, they will be dividing in the fast pace, और उसके रिजल्ट में मिल्क जो है वो within hours spoil कर जाएगा. So you put the milk into the refrigerator. उसने हमने क्या किया कि हमने लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया. अब वो जो लो टेम्परेचर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए फिजिबल नहीं है. दे विल नॉट ग्रो, और यू हैव स्लो डाउन द ग्रोथ. इसी तरह से पोटैटो सैलेड वाली एग्जांपल हमने देखी थी. यू हैव क्लियरली ऑब्जर्व देयर 4 घंटे के अंदर अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से ग्रो हुए, और अगर हम वही पोटैटो सैलेड किसी प्रिजर्वेशन टेम्परेचर पे रखा होता 4 डिग्री पे, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्लो डाउन किया जा सकता, तो हम उसको ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते थे. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट we could have increased the shelf life of that potato salad. So this is the role of the temperature with the food preservation. इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे कि टेम्परेचर जो है ये फूड किस तरह से इफेक्ट करता है. इसी तरह से बहुत सारी टेम्परेचर सेंसिटिव फूड आती हैं जो कि कोल्ड चेन मेंटेन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम फैक्ट्री टू योर होम. योगर्ट कोल्ड चेन मेंटेन होती है, इसकी आपको हमेशा फ्रिज में से मिलती है. कोल्ड चेन मेंटेन होती है इसी वजह से कि उसके अंदर नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोबैसिलस बिफिडोबैक्टीरिया. अगर उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं रखेंगे तो वो ग्रो करेंगे एंड दे विल स्पॉइल द योगर्ट. ओके, सो दिस इज द लिंक विद द टेम्परेचर एंड द फूड प्रिजर्वेशन. इसके अलावा अगर हम देखें द लिंक ऑफ टेम्परेचर विद द डिजीजेस, there are certain diseases that are linked with some temperature requirements, or the organisms which are
the causative agent for the diseases. For example, यहाँ पे एक example लिखी हुई है Hansen disease की. Hansen disease and other word that is termed as leprosy. What is leprosy? Okay, ऐसे कोई पेशेंट खुदा ना खासा आजकल तो नहीं है, वैसे आपने कोई पिक्चर वगैरह देखी? हाँ, आप ऐसे इनके अलावा, शी इज राइट, इनके अलावा किसी ने देखा व्हाट इज लेप्रोसी? ओके, डॉक्टर रुथ फॉग का नाम। अब मैं एक आपको पिक्चर दिखाने लगा हूँ, थोड़ी सी हॉरिबल है बट स्टिल दिखानी है मुझे। ड्यूरिंग द हैंसन डिजीज द पेशेंट किस तरह का हमें उसकी वो होता है, लाइक दैट। दिस इज द लेप्रोसी हियर, और इस केस में Mycobacterium leprae that is a causative agent for this disease, leprosy. अब होता क्या है कि human body temperature that is 37 डिग्री सेंटीग्रेड, Mycobacterium leprosy की ग्रोथ होगी थोड़ी सी कम टेम्परेचर पे। इसी वजह से हमेशा जो लेप्रोसी है ये स्टार्ट होती है फिंगर से, ये स्टार्ट होती है एयर लोब से, हैंड्स और फीट से। क्यों? क्योंकि एयर लोब्स में, फिंगर्स में टेम्परेचर लो होता है, 37 नहीं है यहाँ पे, लो टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर नेक रीजन में एंड द वाइटल रीजन हियर, थोरेसिक रीजन एंड हियर। तो इसलिए जो लेप्रोसी की ग्रोथ है हमेशा स्टार्ट होगी एयर लॉब्स, फिंगर्स, हैंड्स एंड द फीट, एंड देन इट विल स्प्रेड थ्रू द बॉडी व्हेन माइक्रोऑर्गेनिज्म विल एस्टैब्लिश इट्स इन्फेक्शन। ये एक एग्जांपल है कि किस तरह डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में टेम्परेचर है वो फैसिलिटेट करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को। दिस इज वन एग्जांपल, हैंसन डिजीज। दूसरी है साइफिलिस। साइफिलिस सर ये एक दफा रिपीट कर दें जी, ये एक दफा रिपीट कर दें ये वाली। मैं सिर्फ सैफ ये बता रहा हूँ कि लेप्रोसी एक डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉज करता है, और इसको इन्फेक्शन स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, और ये लो टेम्परेचर जो है ये हमेशा, इसीलिए इन्फेक्शन जब भी स्टार्ट होता है इसका, ये ईयर लॉब से, फिंगर्स, हैंड्स और फीट से स्टार्ट होता है, क्योंकि इन रीजन्स में टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू द नेक रीजन, द थोरेसिक रीजन। ठीक है, तो इस वजह से जहां से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, जब इन्फेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर पूरी बॉडी पे स्प्रेड करता है। ये बात कर रहा हूँ सिर्फ। दूसरी है साइफिलिस। साइफिलिस का कॉजेटिव एजेंट है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम, PALLIDUM, पैलिडम। Syphilis that is a sexually transmitted infection, और नॉर्मली दिस स्टार्ट्स फ्रॉम जेनिटेलिया। ये जेनिटेलिया से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये लिप्स और टंग पे आता है, सॉरी, और उसके बाद ये बॉडी पे स्प्रेड करता है। और जेनिटेलिया से स्टार्ट इसलिए होता है कि साइफिलिस रिक्वायर अ बिट हाई टेम्परेचर टू ग्रो, एंड इन द जेनिटेलिया, लिप्स एंड टंग रीजन टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली हायर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नॉट फ्रॉम द as comparison to the neck, but the genitalia they have comparatively high temperature. So this is another example, and we can have these two examples. We can have a clear relationship of different temperatures for the establishment of the infections during the in the different parts of the human body. Got it? Any questions? Any relevant or irrelevant questions you have in your mind? You should have it clear. कोई मसला? जी low temperature slightly, तो नहीं करता, लेकिन जब एक दफा इन्फेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, जब नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया ज्यादा हैं, तो नाउ दे आर एबल टू ग्रो एवरीवेयर। बट हाँ, वो करेगा, बट जब इन्फेक्शन स्टार्ट होना है तब अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लोड कम है, तब उन्हें अपना फिजिबल टेम्परेचर चाहिए। लेकिन एक दफा व्हेन दे आर इन द फुल ज़ील तो फिर वो ग्रो करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करता रहता है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एक्ट करता रहता है, लेकिन एक दफा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो फिर अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया जो पहले जिनकी जरूरत नहीं होती थी वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ओके, दिस इज जस्ट लाइक दैट। somehow maybe it is कुछ अर्सा पहले तक इसकी जो इसकी जो क्योर थी उसमें टाइफाइड कॉज करवाया जाता था लोगों में, बट स्टिल अब तो ये चूंकि अच्छी बात है कि दुनिया से खत्म हो चुका है लेप्रोसी, एंड वी कैन नॉट से दैट, बट स्टिल यू आर राइट। इसमें एनवायरमेंटल उसको जो टेम्परेचर है वो शायद इतना इफेक्ट नहीं करता जितना बॉडी टेम्परेचर उसको इफेक्ट करता है, दैट क्लोज इंटरेक्शन विद द बॉडी, सो दैट्स अच्छा जी। This was about it.
So coming next, that is the oxygen availability. Depending upon the oxygen requirement, microorganisms, they can also be categorized into 5 groups. One is called obligate aerobes, obligate anaerobes, facultative anaerobes, microaerophilics, and aerotolerant anaerobes. Okay? अच्छा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है ये यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें होंगी हमारे पास. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन, यू नो दैट, and oxygen respiration के दौरान microorganism and some other larger animals including we are able to produce the ATPs and energy by using the oxygen. और ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो ऑक्सीजन दैट इज एक्टिंग एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और द डोनर. ओके, और उसके रिजल्ट में हमारे पास ATP प्रोडक्शन है, जिसके रिजल्ट में दिस इज required for in the case of aerobic organisms. सवाल ये है कि oxygen is involved in the respiration as well as oxygen is involved in energy production, and this respiration that involves oxygen and oxygen is required by the aerobic organisms. But here I have a question कि anaerobic organisms जो हैं they do not require oxygen for their growth. How they produce energy, how they grow? What do you think? Was that? कैसे समझ में आया? Just question, पहले दिया था. बोलो. चलो फिर से बताता हूँ. सही है? Okay. My point is that there are certain organisms which require oxygen to grow. They are called aerobes. ऑक्सीजन का करते क्या हैं वो? रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. There is another class of the microorganism that is termed as anaerobes. वो क्या करते हैं? Without oxygen ग्रो करते हैं. अब वो एनर्जी कहाँ से लेते होंगे? No. और NADH FADH कहाँ से आ गया? No. Anyone else? Yes. अब कुछ कहना चाह रहे हैं? सैफ, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? जी सर. तो अब जरा जवाब भी मुझे बता दो. सैफ बता. सर सवाल तो समझ आया लेकिन जवाब नहीं पता सर. अच्छा, चलो तुम्हारी सादगी जो है. जी बताएं. सर उसमें जो रिएक्शन होता है जिसमें वो मॉलिक्यूल्स पैरेलल के साथ डिवाइड होते हैं, उसमें उस रिएक्शन अभी यू आर राइट, इससे बात करते हैं. ओके, तो ऑब्लिगेट एरोब, ये अभी इन्होंने एक आंसर दिया है लेकिन मैं इसको डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में अभी आगे जाके. ऑब्लिगेट एरोब्स जो हैं बेसिकली यहाँ पे जो मैंने आपको बताई, देयर आर 5 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. उसमें फर्स्ट कैटेगरी दैट इज ऑब्लिगेट एरोब्स, दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ. इन एनी केस दे रिक्वायर ऑक्सीजन, दे कैन नॉट ग्रो विदाउट ऑक्सीजन. द सेकंड कैटेगरी दैट इज ऑब्लिगेट एनारोब, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड दे कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये दोनों ऑपोजिट हो गए ना एक दूसरे से. Facultative means they're flexible. Facultative, they grow best if the oxygen is present, but if the oxygen is not present, they can grow. They are flexible. And the microaerophilic require oxygen, but in very minute quantity. So that's why they are called microaerophilic. And number 5, they are aerotolerant. They don't care either oxygen is present or not. They used to grow. And they are called obligate fermenters. They are indifferent to oxygen. They don't care oxygen is present or not. They have to grow. Got it? अब इनकी डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा. डिटेल ये है कि ओके जी, द डिटेल ऑफ अब यहाँ पे एक सवाल है. It has been written here कि obligate anaerobes जो हैं they cannot multiply in the presence of oxygen. Why? Saf, my question is that here, तुम्हें बोर्ड नजर आ रहा है सैफ? जी सर. Obligate anaerobes they cannot multiply in the presence of oxygen. Why? सर उनका सेल्युलर मशीनरी ऐसी होगी जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना हो. For example, आपने बिल्कुल ठीक कहा. Example. एनारोबिक During the
aerobic respiration, microorganisms, they metabolize, they produce ATPs, they produce energy, and as well as they produce reactive oxygen species. For example, superoxides, hydrogen peroxides. ये जो superoxide और hydrogen peroxides हैं, these are toxic for the cells. इन superoxides को destroy करने के लिए these microorganisms, they have enzyme this is called superoxide dismutase. Okay? And अभी आती है बात. And for the hydrogen peroxide, for the degradation of hydrogen peroxide, aerobic organism has another enzyme that is called catalase. अब होगा क्या? अब सुनिएगा जरा. अब होगा क्या कि during the aerobic respiration oxygen use होगी for respiration for the production of energy. उसके रिजल्ट में reactive oxygen species produce होंगी. वो कौन-कौन सी हैं? Superoxides and hydrogen peroxide. These are dangerous for the cell, for the lipid structure of the cell. अब इन्हीं cells के अंदर इनको degrade करने के लिए enzymatic machinery मौजूद है. कौन सी? Superoxide dismutase as well as catalase. Superoxide dismutase जो है वो superoxides को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में. मैं यहाँ पे अगर रिएक्शन लिखूं, ये सुपरऑक्साइड था, that was converted में पूरा रिएक्शन नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे बना रहा हूँ. सुपरऑक्साइड that was converted into H2O2 और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? डिसम्यूटेज. कौन सा डिसम्यूटेज? सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज. अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, ये भी डेंजरस है, बट दिस इज लेस डेंजरस एज कंपेयर्ड टू सुपरऑक्साइड. इसको मजीद कन्वर्ट किया जाएगा H2O में प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में. और कौन करेगा? कैटालेज. वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे, डेंजर खत्म. कौन कर रहा है? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर ग्रोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दे हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट द सुपरऑक्साइड्स एंड देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे आर डिस्ट्रॉइंग और डिग्रेडिंग द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इनके लिए डेंजरस नहीं है, बिकॉज दे हैव एंजाइमेटिक मशीनरी. गॉट इट? अगली बात, एनारोब्स. व्हाई एनारोब्स कैन नॉट मल्टीप्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? इसलिए कि दे डू नॉट हैव दीस टू एंजाइम्स. ये दो एंजाइम्स नहीं है एनारोब्स में. एनारोब जो है they cannot destroy the reactive oxygen species, and as a result of that they may be destroyed when they are exposed to the oxygen. समझ में आ गई बात? बात मेरी समझ में आ गई है जी? किसी को कोई मसला तो नहीं है ये बात समझने में? अभी और आपको दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, इस पे देखते हैं, फिर शायद बात और क्लियर हो. अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुनिएगा ध्यान से, फिर बाद में लिख लीजिएगा. मेरी बात पहले सुनेंगे. अब बी टेंट. Supposing you have a task, you have a few microorganisms which are unknown, and you do not know either they are the aerobic, they are anaerobic, they are microaerophilic, they are whatever. You have to find it out कि इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है. इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. That experiment is called shake tube method. This is called shake tube method. This is shake, S-H-A-K, shake tube method. Shake tube method का प्रिंसिपल क्या है कि हमने यहाँ पे सिंपली इसका प्रोसीजर सुनिएगा. हमने एगर बनाया, एगर नॉट ब्रॉथ, एगर बनाया, एगर को डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर. ओके. एंड जो अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका इनोकुलम दे दिया. ठीक है, इनोकुलम दे दिया. अब होगा क्या कि इफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑब्लिगेट एरोब, ये if that microorganism is obligate aerob, ये ग्रो करेगा ऑन द अपर सरफेसेस जहां पे ऑक्सीजन मैक्सिमली अवेलेबल है, क्योंकि ये एरोब है, ऑब्लिगेट एरोब है. if that microorganism is obligate anaerob, तो ये लोअर सरफेसेस में ग्रो करेगा जहां पे ऑक्सीजन नहीं है. if that microorganism is microaerophilic, तो ये सेंट्रल पोजीशन में ग्रो करेगा जहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी माइन्यूट है. if that microorganism is facultative,
पूरी ट्यूब के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में ग्रो करेगा। ओके, इफ दैट इज इनडिफरेंट, जिसको ऑक्सीजन का फर्क ही नहीं पड़ता, ये भी बिल्कुल पूरी ट्यूब में इसी तरह से डिस्पर्स फॉर्म में ग्रो करेगा। दिस इज अ शेप ट्यूब मेथड। अब यहाँ पे फिनोमिना क्या है, अगर आप देखें तो ऑब्लिगेट और ऑफ के नीचे लिखा हुआ है द एंजाइम्स which are required for the detoxification। दो एंजाइम्स हैं, कौन कौन से, कैटालेज और सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज क्या करता है कि सुपरऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इसको कैटालेज एंजाइम ब्रेक करता है इनटू वाटर एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। खत्म हो गया स्टोरी। आगे चलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स पे, इस पे थर्ड वन, इसके नीचे लिखा हुआ है नीदर कैटालेज नॉर सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज। इसमें दोनों एंजाइम नहीं होते, इसी वजह से ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात। तीसरा चलते हैं माइक्रो एरोफिलिक पे। माइक्रो एरोफिलिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालेज होती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज होती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन की माइन्यूट क्वांटिटी में ग्रो करता है सिर्फ। ओके, आगे चलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब जो है इनके अंदर कैटालेज भी होते हैं और सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज भी होते हैं, इसलिए अगर इन्हें ऑक्सीजन मिल जाए तो ये बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो भी ये ग्रो करते हैं। इनकी ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिले तो इनकी ग्रोथ फास्ट होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि दिस वन, ये ट्यूब सेकंड और ये जो एंड पे है, इसका ग्रोथ पैटर्न तो सेम है। अगर आप देखेंगे विद द नेकेड आई तो आपको इसमें भी डिस्पर्स ग्रोथ नजर आ रही है, इसमें भी डिस्पर्स ग्रोथ नजर आ रही है। देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फैकल्टेटिव और एरोटॉलरेंट? नॉट ओनली साइज, फिर आप यूं करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब को आप विजिबली देखने के बाद अगर आपके पास आप कंफ्यूज है, देखें बाकी तीन चीजों तो क्लियर हो गई, इन दो में आपका मसला है, तो फिर हम इसका सेकंड टेस्ट करेंगे। उसमें करेंगे हम इन एंजाइम्स का टेस्ट करेंगे। देखें इसके अंदर दोनों एंजाइम मौजूद हैं और इसके अंदर सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज है और कैटालेज नहीं है, यानी कि ये वाली ग्रोथ हुई है, ये कैटालेज नेगेटिव होगी। तो इट मींस दैट इनमें से जो कैटालेज नेगेटिव होगा दैट वुड बी एरोटॉलरेंट। सो इन द सेकंड स्टेप और इन द सेकंड टेस्ट we are able to identify that either they are aerotolerant or either they are facultative aerobes. Got it? Any questions? I have a chat here. सर आपने कहा है कि फैकल्टेटिव एनारोब के अंदर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब ये बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेगा, ऐसे ही? ऐसे ही मैंने कहा है कि सर लेकिन ये तो फैकल्टेटिव एनारोब है, इसके लिए तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मैंने यही कहा है कि दिस इज anaerobe but this is facultative, it means that is flexible, so it will grow without oxygen, but when the oxygen is present इसकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। ये ग्रो कर रहा है विदाउट ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन जो है वो इसकी ग्रोथ को फास्ट कर देगी, दैट्स इट, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। इसीलिए हम इसको anaerobe कह रहे हैं कि विदाउट ऑक्सीजन ग्रो कर रहा है। ओके सर जी। एनी अदर? सर ये आपने जो फंक्शन बताया है, जो एंजाइम डिसम्यूटेज है, सर इसका क्या फंक्शन है इस रिएक्शन में, इस एंजाइम में? अच्छा बच्चे यहाँ पे देखें, इसके अंदर ये वाली देखें आप, सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये क्या कर रहा है कि सुपरऑक्साइड और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इसको कन्वर्ट कर रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड में। इट मींस दैट सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज दैट इज डिटॉक्सिफाइंग द सुपरऑक्साइड। तो सुपरऑक्साइड जो था ये ज्यादा टॉक्सिक था, इसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड में व्हिच इज लेस टॉक्सिक। ओके जी सर। और फिर ये लेस टॉक्सिक फॉर्म जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओके, डू यू हियर मी द ऑनलाइन वन? ये जो है सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज का फंक्शन और ऊपर कैटालेज का फंक्शन है। गॉट इट? एनी अदर क्वेश्चन? यस, पूछें। एरोटॉलरेंट कैटालेज नेगेटिव क्यों है? एरोटॉलरेंट यूजुअली दे आर इन डिफरेंट ऑक्सीजन एंड दे आर फर्मेंटर्स, दे डू फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से इन्हें कोई इसका लेना देना नहीं है, ना ये एरोबिक कैटेगरी में है ना एनारोबिक में। So this is a characteristic of that organism that they do not have metabolism and they rely for their energy production on the fermentation process. So this is characteristic.
जिस तरह हमारे पास ये वाले जो है ये एंड और जो है इनके पास दोनों नहीं है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक। ओके, आई होप आई हैव जस्टिफाइड। नो, नहीं बात बनी? फिर से पूछें, अगर नहीं समझे फिर से पूछें, डोंट हेजिटेट इन द क्वेश्चंस। फिर मुझे सवाल से आंसर दे क्वेश्चन। मैं ये पूछ रही थी कि जो एरर टॉलरेंस है वो कैटेगरी में कैटेगरी साइंटिस्ट है कि उसमें कार्डियो एंजाइम इस कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कैटेगरी एंजाइम एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? उसकी जस्टिफिकेशन हमारे पास ये है कि चूंकि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन के रिजल्ट यू नो दैट लैक्टेट प्रोड्यूस होता है एक्सेट्रा। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन है, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस। इसका मतलब है कि when they do not require oxygen for the growth, तो इसमें कैटेगरीज नहीं है। हाँ, सुपर ऑक्साइड डिसमिनेस प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन के रिजल्ट में समटाइम्स हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं और उन सुपर ऑक्साइड्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रॉय करना होता है। सो इसलिए सुपर ऑक्साइड डिसमिनेस जो है, क्योंकि इसमें अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनता, इसलिए नेचर में इसका कैटेगरी फिर इफेक्टिवली मेथड और एरर टॉलरेंस तो मतलब अलग से क्यों कहते हैं? अच्छा, ठीक है साहब, ठीक है। ओके, pH. Depending upon the pH requirement, we have categorized the microorganisms in 3 categories. One is neutrophiles, alkalophiles, and acidophiles. It's very general, and there are certain prokaryotes that have ability to grow on acidic pH, on alkaline pH, and many microorganisms they require neutral pH for their growth, so that's why they are called neutrophiles. और वो organisms जो कि extreme pH पे grow करते हैं, उनका extreme pH पे grow करते हैं, लेकिन उनका जो intracellular pH है वो neutral ही रहता है। क्यों? They have the proton pumps, और you know that pH is the measurement of the protons. ऐसे तो अगर pH किसी environment में low है तो इसका मतलब proton concentration vary करेगी। But I told you the microorganisms which are in fact the acidophilic or which require the low pH to grow, in fact their intracellular pH is neutral. They have the proton pumps, तो जितने भी प्रोटॉन उनके अंदर जाते हैं उसको पंप आउट करके बाहर निकाल देते हैं, और इंटरनल पीएच जो है उसको न्यूट्रल रखते हैं अपने एंजाइम वर्किंग के लिए। और एनवायरनमेंट जिस पे ग्रो कर रहे हैं, एनवायरनमेंट अगर से एसिडिक है, but still these microorganisms they have neutral pH inside their cytoplasm. अच्छा, यहाँ पे अगर न्यूट्रोफाइल्स की कैटेगरी की बात करें तो न्यूट्रोफाइल्स they can grow from 5 pH to 8 pH, and acidophiles they grow at pH that is below 5.5, and the alkalophiles they grow above 8.5 pH. इसमें थोड़ी सी मजीद अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे बाकी वाला पोर्शन फिर पढ़ते हैं, लेकिन पीएच की एग्जांपल की कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे। यस, दिस वन न्यूट्रोफाइल्स। अच्छा, न्यूट्रोफाइल्स की एक एग्जांपल हमारे पास है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। आपने नाम सुना है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दैट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अ कॉजेटिव एजेंट फॉर the ulcers, stomach ulcers, Helicobacter pylori, that grows into the stomach में grow करता है, and you know that stomach environment is जी मैं वही बात कर रहा हूँ, सुने तो सही मुझे अभी। Helicobacter pylori that is growing into the stomach, and that is causing ulcers, and the stomach environment is acidic. Here the question is that Helicobacter pylori is a neutrophilic, and how can it grow in an acidic environment? एक ऑप्शन मैंने वो बताया, लेकिन वहाँ पे यहाँ वो एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे क्या है कि Helicobacter pylori has an enzyme which is named as urease. Urease enzyme जो है that has ability to break down the urea. जब यूरिया ब्रेक डाउन करेगा तो
उसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अमोनिया की प्रोडक्शन जो है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जहाँ पे ग्रो कर रहा है उसकी विसिनिटी में अमोनिया की प्रोडक्शन पीएच को न्यूट्रल कर देगी, और उस पीएच न्यूट्रल होने की वजह से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज कंफर्टेबल टू ग्रो इन दैट एनवायरनमेंट एंड दैट विल ग्रो हियर। एनवायरनमेंट ओवरऑल एसिडिक है, लेकिन जहां पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ग्रो करना स्टार्ट किया वहां पे उसने यूरिया को ब्रेक डाउन करना शुरू किया। यूरिया विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ammonia. Ammonia will create the neutrophilic environment there, and microorganisms they can grow. The helicobacter they can grow here happily. This is another mechanism. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था the pumping out of the protons. ये दूसरा mechanism पढ़ा है. How neutrophils are successful to grow into the acidic environments. ठीक है? इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है हमारे पास acidophils में acidothiobacillus ferredoxins की और ferroxylins की, and this can grow at the pH 2, बहुत low pH है pH 2, और क्यों इसकी ability है, it has ability to oxidize the sulfur compounds and it can produce the sulfuric acids, और sulfuric acid की presence में ये grow करता है। इसके अलावा एक और organism है Phytophilus oshemi. This is the organism that is known to grow at minimum low pH, pH 1, ये बहुत एसिडिक pH है, pH 1, ठीक है। और अल्कैलोफाइल्स एग्जांपल है Bacillus alkalophilus, and that can grow on the pH 10.5, और ये इसके पास प्रोटॉन पंप्स हैं, ये प्रोटॉन को एक्सचेंज करता है सोडियम आयंस के साथ। सोडियम आयंस के साथ कैसे, ये प्रोसीजर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक न्यूट्रोफाइल्स, एसिडोफाइल्स एंड अल्कैलोफाइल्स, इन तीनों की एग्जांपल्स आपके पास आ चुकी हैं। ग्रो कैसे करते हैं, कैसे न्यूट्रोफाइल्स एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स बाकी चीजों की देखते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स अभी हमने पढ़ा। ऑब्लिगेट एरोब्स की एग्जांपल है माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस आर द एंजाइम्स, माइक्रोकोकस आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव एबिलिटी टू ग्रो ऑन द एरोबिक कंडीशंस। ऑब्लिगेट एनारोब्स की हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है Bacteroides and Clostridium botulinum. Clostridium botulinum is the causative agent for botulism, that is a food poisoning, botulism, ये वाला जो इसके अलावा ये इसकी बात भी हम करेंगे। उसके अलावा facultative anaerobes, E. coli, microaerophilic that can grow from 2% to 10% oxygen, ठीक है। एंड इसकी एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्टमक में है, ऑक्सीजन लो है वहां पे, ये ग्रो करेगा। एरोटॉलरेंट एग्जांपल है Streptococcus pyogenes, and Streptococcus pyogenes is the bacteria which is the causative agent for strep throat, गला खराब, strep throat, Streptococcus pyogenes, that's the common example for the strep or the sore throat, वायरल इन्फेक्शन अलावा है, लेकिन बैक्टीरिया में ये है। Streptococcus pyogenes के नाम याद रखिएगा, आगे Streptococcus pyogenes और Streptococcus का कंपैरिजन आएगा, उसमें आपसे बार-बार चीजें पूछूंगा मैं। Streptococcus pyogenes, that is an organism which have ability to grow in the aerotolerant way, and that is the common example. मैंने बताया था Clostridium botulinum एक organism है that cause botulism disease, और ये नॉर्मली टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि मीट वगैरह को या अदर मीट प्रोडक्ट्स को इन्फेक्ट करता है, और उसमें हमारे पास ये फूड पॉइजनिंग की कैटेगरी में आप इसको जनरली कंसीडर कर सकते हैं। ओके जी, सो दीस वर द एग्जांपल्स फॉर द ऑर्गेनिजम्स। भाई यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई मसला हो, वो पूछ सकता है। जी, any questions? Saf, any question? No, sir. You know that water is life, and life cannot exist without water. So water is necessary for the growth. And अब यहाँ पे सवाल और कुछ explanation ये है, there are two types of the microorganisms depending upon the water requirement and depending upon the salt concentration. Halotolerant and halophiles. Halotolerant and halophiles. You are familiar with it. आगे अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं, this one, ये वाला, yes,
to show the effect of the salt concentration. यहाँ पे अगर हम देखें तो this is a microorganism. इसमें सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है अंदर, और साइटोप्लाज्म है, और अगर बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो you know that water moves from higher concentration lower concentration. Water will move from inside to the outside, जिसके रिजल्ट में साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा and this would be termed as plasmolysis. Okay, plasmolysis. अब होगा क्या कि यहाँ पे मैंने बताया दो कैटेगरीज हैं, एक है हेलो टॉलरेंट एंड एक है हेलोफाइल्स. ये याद रखिएगा, हेलोफाइल्स दे रिक्वायर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फॉर देयर ग्रोथ. मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा. हेलोफाइल्स दे रिक्वायर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फॉर देयर ग्रोथ, बट द हेलो टॉलरेंट दे कैन बेयर हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट. दोनों में फर्क है, समझे? नहीं आपको समझे? पूछे नहीं समझे, क्वेश्चन करने में हेजिटेट नहीं करना आपने. हेलोफाइल्स सॉल्ट है, सॉल्ट. हेलोफाइल्स means that the organisms which require high concentration of salt for their growth. Helophils. Halotolerant which can bear high concentration of salt. दोनों में बड़ा फर्क है. जी बच्चे, आप ऑनलाइन में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? नहीं सर, समझ आ गई, वो मैंने पूछना था. ओके गुड. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेलोटॉलरेंट दे कैन ग्रो इन रिलेटिवली हाई सॉल्ट सॉल्यूशन अप टू 10% NaCl पे ग्रो कर सकते हैं. और हेलोफाइल्स दे रिक्वायर हाई लेवल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. दे रिक्वायर, ये कम कंसंट्रेशन पे ग्रो ही नहीं करेंगे. लेकिन जो हेलोटॉलरेंट है, अगर इन्हें ज्यादा कंसंट्रेशन मैक्सिमम 10% तक मिलती है, लेकिन बियर इट इज दे आर हेलोटॉलरेंट. अब हेलोटॉलरेंट में और हेलोफाइल्स में मैकेनिज्म क्या होता है, अगर इस पे फोकस करें तो ये देखिएगा यहाँ पे, चूंकि ये एक सेल है, अगर ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम इसमें प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी. प्लाज्मोलिसिस होगी तो सेल विल डाई. इससे बचने के लिए सेल क्या करता है कि अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही इंटरनल सॉल्ट्स एंड आयंस बनाता है, जिसकी वजह से इंटरनल वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाती है. पानी बाहर नहीं निकला, अंदर सॉल्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से वाटर कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी कंपैरेटिवली. जब वाटर कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में रिड्यूस हो गई है तो अब वाटर जो है वो आउटफ्लो नहीं कर सकता बाहर. इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रोटेक्टिंग the water flow from outside to the inside, and this is the reason how they are able to grow at this condition. ये वाले हेलोटॉलरेंट होंगे ना? Yes. सर ऑलरेडी हाइपोटोनिक इस एनवायरनमेंट की बाहर इतनी ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो बाहर से तो ले सकते. No. फिर वो कोई बाहर से सॉल्ट पिक नहीं किया जाएगा. बाहर से हम उसके साथ एक्सचेंज नहीं करना चाह रहे उस एनवायरनमेंट के साथ. हम इंटरनल वाटर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं. इंटरनल आयंस ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस करवाएंगे रिएजेंट्स जो कि इंटरनल वाटर कंसंट्रेशन को रिलेटिवली लो कर देंगे, पर पानी वेस्ट नहीं हो, पानी है वहीं पे, बट नाउ दैट इज यू कैन सी दैट इन द बाउंड फॉर्म. नाउ दैट कैन नॉट आउटफ्लो इनटू द एनवायरनमेंट. दिस इज द रीजन. ये हेलोटॉलरेंट जो हैं, दे हैव दिस मैकेनिज्म व्हिच मेक देम फिजिबल टू ग्रो एट द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. हाई कंसंट्रेशन मतलब अप टू द 10% ऑफ NaCl, and this is very high concentration. Okay, good. For example, if we can, इसमें हमने पढ़ा था, एग्जांपल पढ़ी थी डेड सी की, डेड लेक ऑफ USA. फिर मैंने क्योड़ा माइन से उस एग्जांपल दी थी, remember? तो दिस फॉल इन दैट कैटेगरी, हेलोटॉलरेंट एंड हेलोफाइल्स. क्या टाइम क्या हुआ है? 35. Okay, I think we should stop here and we will start this chapter. शुक्र है from the by tomorrow. उसमें हम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की बात करेंगे. आज हमने फिजिकल पैरामीटर्स की बात की है. कल इंशाल्लाह न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पे बात करेंगे.